Tejananda. Good morning to all my dear students. My name is Professor Rahul Tiwari. I am assistant professor in SIIT CH2. So today our topic is a very important topic is working of steam engine. So we start. This is the basic introduction of steam engine. Let's first read in English, then I explain in Hindi also. An engine is a device which transforms one form of energy into another form, and heat engine is a device that transforms the chemical energy of fuel into thermal energy and utilize its thermal energy to convert into useful work. And this thermal energy converted into mechanical energy in a heat engine. So दिस इज बेसिकली मीन्स एक इंजन ऐसा डिवाइस है जो कि ट्रांसफॉर्म करता है एक एनर्जी से दूसरे फॉर्म में, जो कि हीट इंजन जो होता है वो एक डिवाइस होता है जो केमिकल एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करता है उसके फ्यूल को थर्मल एनर्जी में, और उसी फ्यूल को यूज करता है थर्मल एनर्जी को अपने यूजफुल वर्क को प्रोड्यूस करने के लिए. After that, heat engine are classified into two categories. This is called external combustion engine and this is called internal combustion engine. External combustion engine are those in which combustion takes place outside the engine, and internal combustion engine are those in which combustion takes place inside the engine. It means in internal combustion engine, the combustion is inside only in engine only, but in external combustion engine, the combustion takes place outside the engine. After that, it is a machine that converts heat energy of steam into mechanical energy, and a steam passes its steam into cylinder where it then pushes back and forth, and this piston movement causes the engine to do mechanical work also. This is the steam engine parts. Basically, first of all, these are the parts. For example, steam chest, D-slide valve, exhaust port, eccentric rod, flywheel, eccentricities, crankshaft, crosshead, piston, cylinder. This is the valves. First of all, frame. It is the heavy casting. This is the frame. Okay. This is the frame. It is the heavy casting that separates all the stationary and moving components of the engine and hold इन प्रॉपर अलाइनमेंट. मतलब ये एक फ्रेम ऐसा होता है कि ऊपरी ढांचा जो कि सपोर्ट करता है हमारे इंटरनल कंपोनेंट इंटरनल पार्ट्स को. आफ्टर दैट दिस इज सिलेंडर. दिस इज कॉल्ड सिलेंडर. इट इज द क्लोज चैम्बर integral with cylinder under the action of steam pressure. This parts converts heat energy of steam into mechanical work. जो सिलेंडर होता है बेटा, वो हीट एनर्जी को हमारे वो कन्वर्ट करता है यूजफुल मैकेनिकल वर्क के लिए. Next is the steam chest. It is also written here where steam supplies enters into the cylinder. It is the closed chamber integral with the cylinder. It supplies steam into the cylinder with the movement of D-slide valve. It means when steam enters into this cylinder, it enters only in the steam through steam chest. Next is piston. Piston, you all know that it is a cylindrical disc which is moving back and forth in the cylinder under the action of steam pressure. This part converts heat energy of steam into mechanical work. It means जब आपका स्टीम बाहर से अंदर आएगा और पिस्टन के ऊपर बैक एंड फोर्थ मूवमेंट पुश करेगा, उसकी वजह से पिस्टन अपना बैक एंड फोर्थ मूवमेंट प्रोसेस चालू करता है, जिसकी वजह से हमें मैकेनिकल वर्क प्रोड्यूस होता है. Next is crosshead. It is the link between the piston rod and connecting rod. This is called crosshead. This is called piston. This is called crosshead. And it is the link between piston rod and connecting rod. ये एक ऐसा लिंक होता है जो कनेक्टिंग रॉड और पिस्टन रॉड के बीच में लगा होता है, और ये गाइड करता है मोशन पिस्टन और प्रिवेंट्स इट फ्रॉम बेंडिंग. ये यहीं पर इसी सिलेंडर में इसी रॉड्स पे गाइड करता है और ये बेंडिंग को रोकता है. सीधी सी बात है. कनेक्टिंग रॉड, द फंक्शन ऑफ कनेक्टिंग रॉड इज टू कन्वर्ट द रेसिप्रोकेटिंग मोशन ऑफ पिस्टन एंड क्रॉस हेड इनटू सर्कुलर. एंड दिस कनेक्टिंग रॉड जो होता है, एक इसका फंक्शन बहुत सिंपल होता है कि जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन वो कन्वर्ट करता है रोटरी मोशन में.
Next is crankshaft. It is also the part on which crank is mounted. और एक कंपोनेंट है जहाँ ट्रेजेक्टरी मोशन ऑफ कन्वर्ट होता है रोटेटरी मोशन में. And next is very important, D-slide valve and flywheel. D-slide valve, it is fixed on the steam chest. जहां से हमारी steam enter होती है वहां पर D-slide valve लगा होता है और ये फंक्शन एडमिट करता है स्टीम को अंदर सिलेंडर में एंट्री के लिए. और इसमें वॉल्व लगे होते हैं डी स्लाइड वॉल्व में. द वॉल्व गेट्स फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मोशन फ्रॉम इसेंट्रिक फिटेड ऑन द क्रैंक शाफ्ट. इट मींस हियर दिस इज कॉल्ड डी स्लाइड वॉल्व. ओके. और ये हमारे जो इनलेट और आउटलेट वॉल्व लगे होते हैं इनको ये ओपनिंग और क्लोजिंग का काम भी करता है. जब एक वॉल्व ओपन रहेगा तो दूसरा एक वॉल्व आउटलेट वॉल्व खुला रहेगा जिसकी वजह से एक वॉल्व से सिलेंडर आए और एग्जॉस्ट वॉल्व से एंटर हो जाए. दिस स्लॉट वॉल्व बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और टर्मिनोलॉजी है. और ये स्टीम चेस्ट के जस्ट हमारे इनलेट और आउटलेट वॉल्व के ऊपर लगा होता है. नेक्स्ट इज फ्लाईव्हील. एंड फ्लाईव्हील आप लोग जानते हैं कि फ्लाईव्हील एक्ट क्या करता है, मेंटेन करता है, एनर्जी स्टोरेज का काम करता है. जब रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी को फीड करने के लिए तो वो एनर्जी वो प्रोवाइड कराता है और जब रिक्वायरमेंट नहीं होती है तो वो केवल स्टोर करता है. दिस इज ऑल अबाउट द स्टीम इंजन पार्ट्स. नेक्स्ट इज वर्किंग ऑफ स्टीम इंजन. First of all, I read in English, then I explain in Hindi also. The superheated steam at high pressure, about 20 atmosphere from boiler, is led into the steam chest through here. After the steam makes it into way into the cylinder through any ports A or B. When steam enters from A or from B, depending upon the position of D slide valve. When port A is open, the steam rushes to the left side of piston and forces it to the right. At this stage, the the slide valve covers the exhaust port. This is called exhaust port. It means terminology K. As shown in figure B, since the pressure of steam reaches the end of cylinder, it closes the steam port A. An exhaust port, the steam port B is now open, and the steam rushes into the right side of piston. It means क्या होता है, जब स्टीम जो होती है वो यहाँ पर हमारा जो कोल होता है उसको बर्न करा के कोक करा के जब स्टीम प्रोड्यूस होती है उसमें तो वही स्टीम को हम यूज करते हैं यहाँ पर एंट्री में. स्टीम सप्लाई जहाँ पर लिखा हुआ है और स्टीम चेस्ट से थ्रू एंटर होता है. अब होता क्या है, डी स्लाइड वॉल्व में वॉल्व ए और वॉल्व बी है और एक के एग्जॉस्ट पोर्ट होता है. ये इनलेट वॉल्व है जिसकी थ्रू से आपका स्टीम अंदर आता है. तो जैसे ही स्टीम आपका अंदर आया तो इट मींस जब डी स्लाइड वॉल्व यहाँ रहेगा तो एग्जॉस्ट पोर्ट बंद रहेगा और ये बी पार्ट खुला रहेगा. बी पार्ट जैसे ही खुले रहेगा और यहाँ से गैस जो होती है एंटर करती है, स्टीम एंटर करेगी और ये पिस्टन को इस तरफ पुश करेगी, अपवर्ड मोशन में पुश करेगी. जैसे ये पुश करेगी अपवर्ड मोशन में, इसेंट्रिसिटी जो यहाँ पर फिटेड है इसेंट्रिसिटी रोड के द्वारा से ये डी स्लाइड वॉल्व इसेंट्रिसिटी आगे तरफ मूव करेगा. इसकी वजह से बी पार्ट क्लोज होगा, उसके बाद के पार्ट भी क्लोज रहेगा और ए पार्ट ओपन हो जाएगा. ये देखिए ये डी स्लाइड वॉल्व जो होता है ये इधर शिफ्ट होगा राइट साइड में जिसकी वजह से ये यहाँ इस तरफ ऐसे आएगा, इसमें बी क्लोज हो जाएगा, के क्लोज हो जाएगा और ए से हमारी जो स्टीम होगी वो गैस सेकेंड फेज में यहाँ से एंटर होगी. अब पिस्टन यहाँ से अपवर्ड हुआ था जब स्टीम बी तरफ से आई थी, अब जब ए तरफ से आएगी तो पिस्टन फिर से डाउनवर्ड मोशन होगा. ये प्रोसेस चलता जाएगा ए टू बी टू ए जब तक हमारा, और फिर यहाँ से कनेक्टिंग रोड अपना पिस्टन मूवमेंट बैक एंड फोर्थ मूवमेंट करेगा जिसकी वजह से जो होगा हमारा मैकेनिकल वर्क प्रोड्यूस होगा और जिसकी वजह से हम अपन यूजफुल मैकेनिकल वर्क प्रोड्यूस कर पाएंगे. फिर एट द एंड ऑफ जैसे ही एक प्रोसेस हो गया तो ये के वॉल्व एग्जॉस्ट पोर्ट से ये बाहर हो जाएगा. दिस इज ऑल अबाउट वर्किंग ऑफ स्टीम इंजन, कैसे स्टीम इंजन वर्क करता है. यहाँ से लिंकेज होता है क्रैंक शाफ्ट से टू अदर मैकेनिकल पार्ट्स. और ये पिस्टन है आपका, ये क्रॉस हेड, दिस इज द कनेक्टिंग रोड, दिस इज द वॉल्व रोड, दिस इज द एग्जॉस्ट पोर्ट, दिस इज द स्लाइड वॉल्व, दिस इज द फ्लाई which stores the useful energy, this is the eccentricity located behind the flywheel, this is the crankshaft. Now this forces, अब
अब क्या हो रहा है, ये फोर्स कर रहा है पिस्टन टू द लेफ्ट, जो मैंने बताया आपको। जब बी होगा, बी में यहाँ से जब स्टीम आएगी, क्योंकि बी इनलेट वॉल्व ओपन है पहले फेस में, तो बी से जैसे ही इनलेट वॉल्व ओपन आएगी तो जो स्टीम होगी वो पुश करेगी इस पिस्टन को अपसाइड में, यही बता रहा है। एट द सेम टाइम एग्जॉस्ट स्टीम गोज आउट टू द एग्जॉस्ट पाइप, और उसी टाइम पे जो यहाँ बी की एग्जॉस्ट गैसेस हैं वो अपना वर्क करके एग्जॉस्ट पोर्ट से बाहर क्रॉस कर जाएंगी, और ऐसे ही प्रोसेस रिपीट होगा साइकिल में, और एज ए स्टीम इंजन वर्क, और इसी में हमारा यूजफुल वर्क मिलेगा, और क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू रनर इन अकॉर्डिंग विद एनी वेरिएशंस ऑफ फ्लो। ये प्रोसेस कंटिन्यू होता रहेगा जब तक हमें यूजफुल वर्क, और यहाँ से लिंकेज होता है, हमारा कनेक्टिविटी होता है टू अदर रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स में, जो कि वो यूजफुल वर्क प्रोवाइड कराता है। This is all about steam engine, working of steam engine. So I hope that you have understand all the introduction and parts and working of steam engine. Thank you.